Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, so far we had completed 10 chapters. As I had discussed, that last two chapters are very most important for your board point of view as well as competitive exam point of view. In both the Gujarat board or CBSE, they are having the highest weightage board examination. And we have also 100 marks examination on this Sunday for that particular two chapters. That is a ray optics and wave optics. But as I told you earlier, that the optics is basically uh, classified into the three parts: ray optics, wave optics, and particle optics. In the ninth chapter, we had learnt about the ray optics, in which we had considered the radiation in the ray form. And in that chapter, we had discussed reflection, refraction, and dispersion of the light. In the 10th chapter, we discussed the wave optics. We had discussed some phenomenon to explain that a wave nature of radiation is compulsory, like interference, diffraction, and polarization. So these are the three phenomena: interference, diffraction, and polarization. Uh, for these three particular phenomenon, to explain, to understand this phenomenon, we have to consider that the radiation is in the wave in nature. So at that time, scientists and other people believed that the radiation is in the wave nature. It was this concept was established successfully because of the work by Maxwell and other scientists. So at that time, it was believed that the radiation must be in the wave nature. But after that, there are some phenomena, there are some event occur in the nature to understand that events. If we consider the radiation is in the wave nature, then that phenomenon could not be explained by that particular assumption. So there are some phenomenon like a photoelectric effect, Crompton effect, and a radiation from the black body. So these are the three particular phenomenon. To understand to understand that phenomenon, if we consider the radiation is in the wave nature, that phenomenon could not be explained at that time. So now scientists come to know that there are something missing in the concept. There are something new thing here. Then after, Max Planck was the person who initially introduced the concept of the photon. Maxwell is a different scientist. Max Planck is a different. So Max Planck was the person who introduced the concept of the photon. Photon is, I can say, it is a quanta of the radiation. Photon is a quanta of a radiation, that is a particle of the radiation. So Max Planck introduced the concept of the photon, and after that Einstein used this concept to explain the photoelectric effect successfully. So finally, I can say the photoelectric effect, radiation from the black body, and Crompton effect can be successfully explained by the particle nature, by the photon nature of the radiation. So this chapter is a dual nature of a radiation and matter. The name of this chapter is a dual nature of radiation and matter. So friends, radiation is having a dual nature. In classical mechanics, so far we had discussed the classical mechanics. So according to the classical mechanics, we know that the radiation is in the wave nature. But modern physics suggest that in some of the circumstances, the radiation cannot be considered to be a wave nature. It should be considered in the particle nature, in the photon nature. So the question should arise that exactly the radiation is in which nature? As is it in the particle form, or is it in the wave form? So this question is still a question for human being. So far we are not able to answer this question satisfactorily.
For some of the phenomenon, we have to consider the radiation in the wave nature. For some of the events, we have to consider the radiation in the particle nature. And that is why it is said to be a dual nature. इसका आंसर ह्यूमन बीइंग को आज दिन तक पता नहीं चला है कि वो एग्जैक्टली कौन से फॉर्म में है। देखो वही तो भगवान की महानता है और हमारी वहाँ वही तो हमारे लिमिटेशंस है। तो फ्रेंड्स, हम आज दिन तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि रेडिएशन कौन से फॉर्म में है। हम कुछ इवेंट्स को समझने के लिए उसका वेव नेचर वैलिड है ऐसा मान के चलेंगे, कुछ इवेंट को समझने के लिए हम उसके पार्टिकल नेचर वैलिड है ऐसा मान के चलेंगे। तो वेव नेचर ऑलरेडी हमने लर्न कर लिया है 10th चैप्टर में। अभी 11th चैप्टर में हम क्या करेंगे, रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये पता होगा द होल यूनिवर्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू पर्टिकुलर थिंग्स। कोई बताएगा मुझे, पूरा यूनिवर्स आपके आसपास देख लो तो आपको दो ही चीज नजर आएगी। कोई बताएगा विच टू थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट? मैटर एंड रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। नहीं, आपको कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थोड़ी दिख रहा है आपको। आपके आसपास देखो तो आपको दो ही चीज मिलेगी। बोलो तनिष, आप बोले, क्या बोले आप? मैटर एंड रेडिएशन। वेरी गुड। आप देखो तो आपके आसपास दो ही चीज दिखाई देगी, या फिर आपको रेडिएशन दिखाई देगा या फिर आपको मैटर दिखाई देगा। तो द होल यूनिवर्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू पर्टिकुलर थिंग, रेडिएशन एंड मैटर। एंड भगवान ने हर एक जगह पे सिमेट्रिसिटी दिया हुआ है। सब जगह पे भगवान ने सिमेट्रिसिटी दिया हुआ है। आप देखो फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस को अगर आप ऊपर से देखते हो, जैसे मैकेनिक्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे मैग्नेटिज्म है, तो फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच अगर आपको ऊपर से देखते हो तो आपको अलग अलग दिखाई देगा। बट आप डीप में जाओगे तो पता चलेगा कि सब जगह पे ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स एप्लीकेबल है। जैसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज अ स्पीड। वहां पे स्पीड है तो यहाँ पे आएगा चार्ज पास्ट पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज पास पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। एंड ये इलेक्ट्रिसिटी था। अब थर्मोडायनेमिक्स, हीट एनर्जी पास्ट पर यूनिट टाइम इज अ हीट करंट। तो देखो सब जगह पे देखो ब्रांचेस, एक थर्मोडायनेमिक्स है, एक मैकेनिक्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी है, सब अलग अलग ब्रांचेस है। बट अगर डीप में जाते हो तो आपको इक्वली कंसेप्ट आपको दिखाए, सभी सिमिलर कंसेप्ट आपको फील होंगे। जैसे मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर। मैग्नेटिज्म में एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर। आप देखो तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर। स्प्रिंग के अंदर एनर्जी जो है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अलग अलग ब्रांचेस है, बट आप डीप में जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग यू विल फाइंड। तो भगवान ने हर एक जगह पे सिमेट्रिसिटी दिया हुआ है। रेडिएशन के दो नेचर है, कभी वो वेव फॉर्म में होता है, कभी वो पार्टिकल फॉर्म में होता है। रेडिएशन हमारी कॉमन सेंस एंड जो क्लासिकल फिजिक्स है वो तो ऐसा ही बता रहा है कि रेडिएशन जो होता है वो वेव नेचर में है। बट कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे कॉमन सेंस के परे होती है, वो हम सोच नहीं सकते बट वो होता है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मोस्टली वही चीज होती है कि जो हमारे कॉमन सेंस के साथ कंपेटिबल नहीं है। रेडिएशन हम ऐसा तो समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई वो रेडिएशन जो होता है ना वो वेव फॉर्म में जाता है, बट रेडिएशन पार्टिकल फॉर्म में भी होता है। कुछ इवेंट में उसका पार्टिकल फॉर्म ही हमको कंसिडर करना होता है। ये मॉडर्न फिजिक्स ने बताया, बट वो सही बात है, बिकॉज सम ऑफ द इवेंट कैन बी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय दैट नेचर। सो वो भी सही है। भगवान ने हर एक जगह पे सिमेट्रिसिटी दिया हुआ है। पूरा जो यूनिवर्स है वो मैटर एंड रेडिएशन का बना हुआ है। अब रेडिएशन के दो नेचर है। अब मैंने बताया कि भाई भगवान ने हर जगह पे सिमेट्रिसिटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मैटर के भी दो नेचर होने चाहिए। वैसे हमारी जो कॉमन सेंस है वो हमको ये बताती है कि जो मैटर होता है ना वो ऑब्वियसली पार्टिकल का बना होता है। कोई भी मैटर ले लो, चाहे सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस ले लो, जो मैटर है तो वो पार्टिकल का बना हुआ होता है। वो हमारी कॉमन सेंस है। सही बात है, वो सही बात भी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते हैं।
इन सम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस मैटर कैन बी कंसिडर्ड इन द वेव इन फॉर्म। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो नेचर है वो पार्टिकल नहीं है। इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ वेव इन नेचर। So in some of the circumstances, matter we have to consider the matter is also having a wave nature. तो ये चैप्टर मतलब उल्टा पुल्टा, ये हमारी जो सोच है उससे पूरा उल्टा है। तो इस चैप्टर में हम दो चीज सीखने वाले हैं, एक तो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर सीखेंगे एंड मैटर का वेव नेचर यहाँ पे सीखने हैं। आपको थोड़ा बहुत हिंट जो है ना वो केमिस्ट्री में आया हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपको आपने शायद पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. किसी को पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का कांसेप्ट क्या है? वो क्या ये कौन सा वेवलेंथ है, वो पता है किसी को? डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो कौन सा वेवलेंथ है, किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे? H/mv. हाँ, उसका इक्वेशन तो बराबर है H/mv, उसका इक्वेशन तो ठीक है H/mv, बट वो किसका वेवलेंथ लिखा हुआ है ना, वेवलेंथ तो किसका वेवलेंथ है वो? इलेक्ट्रॉन का, नहीं, इलेक्ट्रॉन का नहीं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हाँ पार्टिकल का। आप बोले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेवलेंथ है। मतलब क्या हुआ कि जब वो मैटर एज अ वेव बिहेव करता है, वो मैटर एज अ वेव बिहेव करता है, तो उसका वो वेवलेंथ है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो ये पार्टिकल मतलब मैटर के वेव नेचर का वो वेवलेंथ है। तो इसके बारे में भी हम ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया कि ये चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो ये चैप्टर में एज द नेम ऑफ द चैप्टर इट इज अ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो हमने रेडिएशन के वेव नेचर को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पार्टिकल that is a photon nature of radiation, and in the other part of this chapter we will discuss the wave nature of a matter. तो ये दो चीज यहाँ पे हमको सीखना है फ्रेंड्स। ये जो 11.1 टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है। भले ही ये बुक के अंदर इसमें से क्वेश्चन बनाए हैं, बट जनरली हिस्ट्री में से क्वेश्चन नहीं पूछने होते हैं, वो आपके समझ के लिए होती है। तो मैं 1 to 4 क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, 1, 2 and 3 क्वेश्चन। तो वो पूरा हिस्ट्री है, वो हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। उसमें कौन से साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंशन किया। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो हिस्ट्री है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे इन्वेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है एंड इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ये तीन चीज यहाँ पे बोली गई है, बताई गई है। तो मैं ये 1, 2 and 3 क्वेश्चन जो है दैट इज नॉट फॉर द एग्जाम that you need to prepare. You have to just understood, you have to find it out which invention is by which scientist, that is the written in the first 3 question. वो आपको पूछने के लिए नहीं है, वो आपके नॉलेज के लिए है। तो मैं वो 3 क्वेश्चन 1 by 1 रीड करने वाला हूँ, आप थोड़ा देख लेना, सुन लेना मेरी बात। तनिष, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर ये जो डुअल नेचर है वो सेम टाइम में होता है या कभी कभी? No. Listen, at any moment, the anything that is a radiation or matter can exhibit only one nature. Both the nature cannot be exhibited simultaneously. Okay? ओके सर। At any instant it can exhibit only one nature. Okay? ओके। तो ये चैप्टर आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज पूरा मतलब हम जो अभी तक हमारे माइंड में जो था उससे पूरा अपोजिट टाइप का चैप्टर है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो फ्रेंड्स, पहले 3 क्वेश्चन में टेंशन लेने का नहीं है, वो जस्ट आपको हाँ बोलो સર એવું કહી શકાય કે જે નેચર છે એ સિચ્યુએશન પર ડિપેન્ડ કરે છે, જેવી સિચ્યુએશન એવો નેચર આવશે. एग्जैक्टली, इट इज डिपेंड ऑन द फिनोमिनन हैपेंड। ये जो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो तो उसको अभी तक वो साइंटिस्ट भी उसका आंसर नहीं दे पाए कि भाई हमको करना क्या है, हमको कौन सा नेचर कब कंसीडर करना है। तो उसका तो कोई आंसर ही नहीं है। और वही तो ये भगवान ने कुछ चीज ऐसी बताई है कि जो हमारे समझ से परे है। तो ये इसी टाइप का एक चीज है कि जो हम अभी तक उसको हम समझ नहीं पाए कि एक है क्या एक्चुअली। तो टू मेक इट सिंपल, व्हाट वी हैड डन,
हम ऐसा करते हैं कि भाई कुछ फिनोमिनन को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ फिनोमिनन को हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, टू मेक इट सिंपल, बट स्टिल how the radiation behave as a, in which circumstances it behave as a particle, in which circumstances it is behave as a wave, it is still no idea. Okay, is that clear? Okay. Chalo, question number Yes, sir. okay, how it can be said the light possess a wave nature. तो फ्रेंड्स 10th चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव इक्वेशन डिराइव किए थे। उसके बाद यंग वाज द पर्सन हु आल्सो एक्सपेरिमेंटेड ऑन द रेडिएशन एंड ही वाज एबल टू मेक द इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये इंटरफेरेंस तो जो है ना वो तो वेव का ही होता है। तो रेडिएशन का इंटरफेरेंस हुआ, इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो लाइट है ना, रेडिएशन जो है ना, वो वेव फॉर्म के अंदर है। तो क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो। तो आंसर इज फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस the electromagnetic wave, it can be said that light possesses a wave nature. So initially it was established that the light is in the wave nature, but उसके बाद कुछ experiment हुए। देखो क्या लिखा है, write the observations of various experiments which suggest that light rays are a stream flow of negative charge. So कुछ experiment ऐसे हुए कि जिससे ये पता चला कि कभी कभी नेगेटिव चार्ज का फ्लो क्रिएट होता है। तो कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट है। इन 1895 विल्हेम रॉन्जन इन्वेंटेड एक्स-रेज। इन 1897 जे थॉमसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन विच वाज अ लैंडमार्क टू स्टडी द नेचर ऑफ एटम। देखो इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन के बाद ही थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वो सारे एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन के बाद स्टार्ट हुए। तो द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज अ वेरी क्रूशियल फॉर द फिजिक्स, वेरी क्रूशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग। एंड आफ्टर दैट पूरा ये जो एटम कौन सा होता है, मटेरियल कैसे बनता है, उसके बारे में बाद में साइंटिस्टों को पता चला। इन 1870 विलियम क्रूक्स इन्वेंटेड अ कैथोड रेज। He filled a gas in a discharge tube. He applied the electric field to the electrode, both the ends of tube. He observed that the electric charge is produced, which traveled to other end. When incident on the fluorescent material, it produced small flickering on the yellowish color. From this, he concluded that the cathode ray are made up of stream of some negatively charged particle. तो फ्रेंड्स आपको ये शायद पता होगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसके अंदर एनोड कैथोड था, और दोनों के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, लो प्रेशर पे गैस फिल किया था अंदर के साइड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, एंड देन व्हेन दे अप्लाइड द हाई पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड फ्रॉम द कैथोड टू एनोड. So that stream of that negative charge, William Crookes was the person who invented this thing. वो पता चला कि भाई कैथोड में से कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वहां पे कैथोड से एनोड पे जा रहा है। जे थॉमसन ने क्या किया था कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे उसके वेलोसिटी भी he determined the velocity. जे थॉमसन was the person who determined the velocity of that charge particle, and he also derived the specific charge. आपको शायद पता होगा कि स्पेसिफिक, देखो याद रखो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक। स्पेसिफिक चार्ज का क्या होता है? तो फ्रेंड्स स्पेसिफिक चार्ज इज नथिंग बट इट इज अ चार्ज पर यूनिट मास। सो व्हेनेवर यू हियर द वर्ड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनीथिंग, सो इट इज अ चार्ज पर मास। अगर हम ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो उसके लिए हम E/m रेशियो लिखेंगे। देखो अभी मैं इलेक्ट्रॉन वर्ड ऐसा मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट इन्वेंटेड। ये जो जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज तो फाइंड कर दिया था, बट इलेक्ट्रॉन ऐसा वर्ड अभी तक पिक्चर में नहीं आया था हिस्ट्री में।
हिस्ट्री में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, तो पहले स्पेसिफिक चार्ज इन्वेंट कर दिया जे थॉमसन ने। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ इन 1887, देखो, राइट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एमिटेड फ्रॉम द मेटल व्हेन द अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब में से कोई नेगेटिव चार्ज का स्ट्रीम बाहर निकलता है, वो क्रुक्स ने फाइंड किया। जे थॉमसन ने उसका वेलोसिटी भी फाइंड किया, उसका स्पेसिफिक चार्ज भी फाइंड किया, बट अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है। इन 1887 it was observed that when the ultraviolet light is incident on the metal or when some metal are heated, once again a negatively charged particle is emitted from it. Particle produced by different method have similar nature. तो ये पता चला कि ये जब हम कोई मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं बाहर निकलते, और इसका भी स्पेसिफिक चार्ज, उसका भी अगर स्पेसिफिक चार्ज फाइंड किया तो वो सेम टू सेम मिला, जो जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब में जो फाइंड किया था वही मिला। तो मतलब ये हुआ कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो मेटल में से जो बाहर निकलता है ऑन इंसिडेंट लाइट या डिस्चार्ज ट्यूब में, वो सेम होना चाहिए बिकॉज उसका स्पेसिफिक चार्ज सेम है। So particles produced by these different methods have a similar nature. In 1897, J.J. Thomson called this negative charge as an electron. अब इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन वर्ड 1897 में यूज हुआ कि भाई ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसको इलेक्ट्रॉन नाम से जे थॉमसन ने पुकारा। And he showed that electron is a fundamental and universal particle. मतलब उसने ये भी बताया कि कोई भी एटम होती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। फॉर दिस इन्वेंशन of electron, J.J. Thomson was awarded a Nobel Prize in 1906 as well. और उसके बाद 1913 में अमेरिकन साइंटिस्ट मिलिकन था, उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फाइंड किया। 1913 में हिज फेमस एक्सपेरिमेंट, ये ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही फेमस था, तो उसके द्वारा उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है वो भी फाइंड किया। सो स्पेसिफिक चार्ज किसने फाइंड किया था भैया? तो स्पेसिफिक चार्ज फाइंड किया था जे थॉमसन ने, बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड किया था? तो बोले वो मिलिकन ने फाइंड किया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मिलिकन ने फाइंड किया था। एंड उसने ऐसा भी बताया था कि जितने भी चार्ज है उसका वैल्यू, ये जो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही आएगा। ऑल द चार्ज इन द नेचर is in the integral multiple of this charge of electron, ये भी बताया था मिलिकन ने। मतलब नेचर में जितने भी चार्ज है उसका क्वांटाइजेशन होता है, तो ये क्वांटाइजेशन की बात भी सबसे पहले किसने की थी? वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे मिल गया, उसका स्पेसिफिक चार्ज भी मुझे पता है, तो मेरे पास स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है, चार्ज का वैल्यू, तो उसके ऊपर से मुझे क्या मिल जाएगा? तो उसके ऊपर से मुझे क्या मिल जाएगा भैया? उसका मास मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के ये जो हिस्ट्री है ना वो किसके लिए है? तो ये जो हिस्ट्री है वो इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन कैसे हुआ, उसका चार्ज कैसे फाइंड किया और उसका मास कैसे फाइंड किया, उसके बारे में ये पूरा हिस्ट्री है। बट ये हिस्ट्री में कहीं पे एक लाइन ऐसा आ गया जो हमारे लिए काम का था। कोई मुझे बताएगा कौन सा लाइन हमारे लिए ये चैप्टर के लिए काम का था? ये पूरे हिस्ट्री में एक लाइन ऐसा था कि जो ये चैप्टर के लिए काम का था, तो बताएगा मुझे कौन सा लाइन? जो बोल्ड में लिखा है वो कौन सा? एक लाइन ऐसा था जो काम का था, कोई बताएगा ये 3 क्वेश्चन में कौन सा लाइन ऐसा था? ये जो लाइन है ना ये काम का था। जब कोई मेटल के ऊपर हम
अल्ट्रा वायोलेट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये पूरा जो हिस्ट्री था उसमें कहीं पे ये पता चल गया था साइंटिस्टों को कि जब मेटल is eliminated by any ultraviolet radiation, then the electron is emitted from the metal. So this phenomenon is important to study in this chapter, and that is known as a photoelectric effect. So friends, अब ये चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपको प्रिपेयर करना है एज ए 2 मार्क। तो व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? सी दिस क्वेश्चन, क्या लिखा है कि एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, डिफाइन वर्क फंक्शन ऑन एंड विच पैरामीटर, विच फैक्टर डज इट डिपेंड्स। तो अब सबसे पहले मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्यों एमिट होता है वो हम समझ लेते हैं, और वर्क फंक्शन क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा, चलो किसी को पता है मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मेटल के अंदर क्या होती है? एनीबॉडी नो? कर्नल और इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मेटल के अंदर कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। कर्नल, C of electrons. C of electron. कर्नल मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। मेटल के अंदर दो चीज ही होती है, पॉजिटिव आयंस होते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट फ्रेंड्स, ये जो फ्री वर्ड है ना, वो थोड़ा मिसगाइड करता है। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, electrons in the metal are free from the atoms. They are not bounded in the atoms. They are free from the atoms, but they are not free from the metal. वो metal से free नहीं है, metal के तो अंदर है। तो कोई भी metal के अंदर पॉजिटिव आयंस है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो मान लो कि हमारे पास एक मेटल है, तो उसके अंदर दो चीज होने वाली है। पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो लेटाइस पॉइंट के आसपास अपने खुद के पोजीशन के आसपास वाइब्रेशंस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो फ्री टू मूव है। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, तो जैसे ही आप कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, देखो अभी जो है ना वो मेटल न्यूट्रल है, बिकॉज जितने पॉजिटिव आयंस है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अंदर की साइड है। जितने पॉजिटिव आयंस है उतने ही अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेट चार्ज इज अ जीरो, सो इट इज अ न्यूट्रल। बट जैसा ही मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ट्राई करूंगा, तो अंदर की साइड कौन सा वाला चार्ज डेवलप होगा? न्यूट्रल चीज में से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ट्राई करोगे तो अंदर की साइड Positive. ऑब्वियसली अंदर की साइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करने का ट्राई करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से रिस्ट्रिक्ट करेगा, या फिर उसको हेल्प करेगा कि वो बाहर निकल जाए। तो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वो क्या करेगा? वो, Restrict. हाँ एग्जैक्टली, तो वो जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसको निकलने नहीं देगा। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भले ही नाम फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, बट वो उसको मेटल में से अगर फ्री करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो अट्रैक्शनल फोर्स है आयन का, पॉजिटिव आयंस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देगा, उसको कुछ अट्रैक्शनल फोर्स देगा। तो उसको फ्री करने के लिए मुझे ये अट्रैक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। आई नीड टू गिव सम एनर्जी in against this attractional force produced by the ions, positive ions on the electron. So इसका मतलब ऐसा हुआ कि भले ही वो नाम फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट वो फ्री नहीं है, उसको फ्री करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। The minimum energy required to make the electron free from the atoms, to make the electron free from the metal, the minimum energy to make electron free from the metal is called a work function. तो फ्रेंड्स, ये वर्क फंक्शन क्या है पता चला आपको?
वर्क फंक्शन क्या है पता चला भैया? Yes, sir. It is the minimum energy to make the electron free from the metal. So this is what is the work function. So obviously, what should be the unit of the work function? It is, after all, it is energy. So what should be the unit of the work function? Joule. Joules. Joule, obviously, but when you deal with the energy associated with the electrons, जब इलेक्ट्रॉन के साथ associated energy की जब बात करते हो, Electron volt. yeah, generally the unit of the energy is not taken joule, it is taken as a electron volt. And I think you know that 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. ये शायद आपको पता हो. अब कोई ऐसा बोले कि भाई define 1 electron volt energy, तो when electron is subjected, when any electron is subjected 1 volt potential difference, then energy gained by that electron, energy gained by 1 electron on application of 1 volt potential difference is defined as a 1 electron volt energy. On application of 1 volt potential difference, the energy gained by the electron is defined as a 1 electron volt energy. Is that clear, friends? Yes, sir. तो फ्रेंड्स, अब आपको ये पता चल गया होगा कि कोई भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा. मिनिमम एनर्जी जो हमको देना पड़ेगा उसको ही वर्क फंक्शन बोलते हैं. वर्क फंक्शन का जो सिंबल है ऐसा फाई जैसा है, ये दैट इज द सिंबल ऑफ द वर्क फंक्शन, एंड इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 10 raised to minus 19 joule. So friends, and on which parameter is depend? It is depend on the 2 parameter type of, it is depend on only 1 parameter type of material. So वो मटेरियल के टाइप के ऊपर डिपेंडेंट है. अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है. कुछ मेटल्स जैसे आल्कली है, तो आल्कली मेटल ऐसी है कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आप आराम से बाहर निकाल सकते हो, उसका वर्क फंक्शन कम होता है. कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शन ज्यादा होते हैं. तो ये क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ट करना है. Explain the emission of electron from the metal, define work function, its unit, and it is depend on the which parameters. एक बार फटाफट देख लेते हैं. Normally electron cannot escape from the surface of the metal. When the temperature of the metal is increased, kinetic energy due to the oscillations increases. When this energy exceeded the binding energy, electron will escape from the metal surface and will become a positive, and metal becomes a positively charged. But due to the attraction force between the positive ions and negative ions, electron again attracted to the metal surface. If the energy of electron is more than the energy due to the attractional force, then only it can escape from the metal surface. Work function, a minimum energy required to make an electron escape from the metal surface is called work function. Work function is denoted by phi naught. Its unit is electron volt, and work function is depend on the type of metal and surface. It is a type, it depend on the type of metal. उसके बाद एक SQ है, what is the unit of the energy atomic in atomic or nuclear physics. So in atomic or nuclear physics, the unit of the energy is electron volt, and we already had defined the electron volt energy. When 1 electron is accelerated under the potential difference of 1 volt, then energy acquired by that electron is called a electron volt. Is that clear, friends? It is for the SQ. ये fifth question जो आपका है वो आपको as a SQ prepare करना है. Okay. Okay, sir. Question number 6, IMP for 2 marks.
क्वेश्चन ऐसा है कि हम कौन कौन से तरीके से इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल सकते हैं। चाहे तरीका कोई भी हो, बट एक चीज तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को मेटल में से बाहर निकालने के लिए चाहे तरीका कोई भी हो, बट एक चीज तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर्ड एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। You have to provide the required energy. You have to provide the energy either equal or higher than the work function. जो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, तो आपको एटलीस्ट वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा एनर्जी आपको अप्लाई करना है। चाहे वो आप कोई भी तरीके से अप्लाई करो, बट तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। तो वी आर हैविंग अ थ्री पर्टिकुलर थिंग बाय विच वी आर एबल टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तीन हिसाब से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। नंबर वन, थर्मियोनिक एमिशन। तो अगर कोई मेटल को अगर हम हीट देते हैं, इफ एनी मेटल इज गेट्स हीटेड, then because of that heat energy, energy of the electron goes on increasing, and it may possible that electron acquire the energy higher than the work function. And when the electron acquire the energy higher than the work function, what happened? काइनेटिक एनर्जी। If its energy will becomes higher than the work function, then it will become free from the metal. तो ये जो एस्केप हुआ, इलेक्ट्रॉन को फ्री किया, एमिशन किया, तो इसको थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ये हीट हीट एनर्जी के द्वारा हुआ, इसको थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। नंबर वन। नंबर टू, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, अगर आप मेटल को 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁸ वोल्ट पर मीटर, so by application of this much large electric field, on application of this much large electric field also, the electron can be becomes free from the metal. So this kind of emission is known as a field, electric field के द्वारा किया, that's why it is known as a field emission. And number three, photoelectric emission. अगर कोई मेटल को अगर हम हाईली एनर्जेटिक हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन अगर इंसिडेंट कराते हैं, on incident of high frequency radiation of the metal, then also the electron can be free from the metal. So this kind of emission is known as a photoelectric emission. So by these three ways we are able to make the electron free from the metal. नंबर वन, एक बार फिर से बोल देता हूँ, थर्मियोनिक एमिशन नंबर वन, नंबर टू फील्ड एमिशन, एंड नंबर थ्री फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो तनिष कुछ पूछना है? सर ये जो अगर हम एक मेटालिक रॉड कंसीडर करें और फिर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें 10⁸ वोल्ट पर मीटर, तो वो तो उल्टा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी ना? नहीं, ईएमएफ तो कब इंड्यूस होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आता है। मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ पे वेरिएशन आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आप, अच्छा मैं बताऊँ आपको क्या बोल रहे हो। अच्छा चलो, ये कोई मेटल रोड पड़ा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब जब उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हो, तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए अपोजिट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, राइट? तो ये आपने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, सही बात है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। बट आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा 10⁸ वोल्ट पर मीटर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन को इसमें से बाहर इतना फोर्स लगेगा उसके ऊपर कि वो मेटल में से भी बाहर निकल के आएगा। इज दैट क्लियर? तो आई एम नॉट अप्लाइंग अ वेरी वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁸ वोल्ट per meter. So by application of this much large electric field, electron can be made free from the metal. Is that clear? Yes, sir. Okay. So these are the three ways by which we are able to make the electron free from the metal. That is the emission of the electron. तो ये 6 क्वेश्चन आपको एज ए 2 मार्क्स लर्न बाय हार्ट करना है। और एक मेथड है सेकेंडरी एमिशन। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैं बता दूं आपको क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को अगर आप मेटल के अंदर डालते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर अंदर मेटल के कोई अंदर के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है,
if you incident a high energy electron inside the metal, then it may possible that that electron will collide with the electron inside the metal, and that electron can be released from the metal. So this kind of emission is known as a secondary emission. तो ये high energetic electron को bombardment से, उसको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट से भी आपको इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हो मेटल के, उसको सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं, बट वो आपके टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है, आपके समझ के लिए है. सो फ्रेंड्स, 3 टाइप के एमिशंस है. 7 क्वेश्चन एसक्यू है कि व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो अभी हमने डिस्कस किया कि व्हेन एनी मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय when any metal surface is illuminated by ultraviolet or high frequency radiation, low wavelength, high frequency. So lower wavelength or higher frequency radiation, then on, I repeat, on incident of high frequency radiation on the metal, electron can be released from the metal. This phenomenon is known as a photoelectric effect. The electron released here, is known as a photoelectron. तो ये एक 7th क्वेश्चन तो एसक्यू है, वो हमको पता ही है. 8th क्वेश्चन वापस से हिस्ट्री है, आपको लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है. So Herd's observation, and it can be understood by this way: how Hertz invented photoelectric effect. So फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को ऐसा मिसकंसेप्ट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इन्वेंशन किया वो आइंस्टाइन ने किया, वो गलत बात है. एक्चुअली द इन्वेंशन, एक्चुअली हर्ट्ज वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट वो कोई समझा नहीं पा रहा था. इवेंट तो मिल गया था, बट उसका रीजन क्या है, ये ऐसा क्यों होता है, वो कोई समझा नहीं पा रहा था. So Einstein was the first person who explained the photoelectric effect successfully. Einstein ने उसको इन्वेंट नहीं किया था, उसको एक्सप्लेन किया था. And due to that, Einstein also got the Nobel Prize for that. But Einstein was the person who successfully explained the photoelectric effect. But it was invented by the Hertz. Am I audible? Are you understanding this thing? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? Yes, sir. तो अब क्वेश्चन ये है कि हर्ट्ज ने कैसे इन्वेंट किया, ये इस फिनोमेनन को कैसे इन्वेंट किया. तो फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज बाय नोइंग दैट हर्ट्ज फाउंड दिस अनइंटेंशनली. he find this phenomenon, he invented this phenomenon accidentally, unintentionally. Actually, Hertz was performing the experiment to produce the electromagnetic radiation. हर्ट्ज का जो बेसिक एक्सपेरिमेंट था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करना था. सो व्हेन द हर्ट्ज was trying to produce the electromagnetic radiation in his experiment, it was required to make the transition of a charge from this spark gap. तो हर्ट्ज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करने का जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसको ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रोड जैसे कैथोड एंड एनोड के बीच में से स्पार्क को पास करना. स्पार्क को पास करना मतलब चार्ज को पास करना. वैसे चार्ज क्या है, कोई भी कंडक्टर के अंदर वो आराम से पास हो सकता है, बट ये तो वैक्यूम, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में वैक्यूम है. फिर भी मुझे कोई एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे मुझे इलेक्ट्रॉन को पास करना है, चार्ज को पास करना है.
ये गैप में से, इसको स्पार्क गैप बोलते हैं, तो ये स्पार्क गैप में से मुझे स्पार्क को पास करना है। तो हर्ट्ज है ना, अलग अलग टाइप का ट्राई, अलग अलग हिसाब से ट्राई कर रहा था कि कुछ भी करके उसको कैथोड में से इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ ले जाना था। ये गैप में से उसको स्पार्क को मतलब इलेक्ट्रॉन को पास कर देना था। अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस हो तो इजीली पास हो सकता था, बट यहाँ पे तो वैक्यूम है। तो अचानक से एक्सपेरिमेंट में हर्ट्ज देखा, अचानक से एक्सपेरिमेंट में हर्ट्ज देखा कि अगर ये कैथोड के ऊपर अल्ट्रावायोलेट लाइट इंसिडेंट होती है, अगर कैथोड के ऊपर अल्ट्रावायोलेट लाइट इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एनोड की तरफ पास हो जाते हैं। मतलब ऑन इंसिडेंट द अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन cathode must emit the electron, then and then the anode experiences the electron accumulation of electron. तो हर्ट्ज ने एक्सीडेंटली ऐसा देख लिया, ऐसा पता कर लिया कि अगर कोई मेटल के ऊपर अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो उसमें से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एमिट होने चाहिए। उसके बाद हर्ट्ज ने तो उसका जो काम था वो खत्म किया। लेबोरेटरी के अंदर वेरी फर्स्ट टाइम Hertz was the person who invented the electromagnetic radiation on the laboratory. तो उसने उसका जो जो टास्क था वो तो खत्म किया। लेबोरेटरी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे पहले जो जो जिसने इन्वेंट किया, जिसने प्रोड्यूस किया वो हर्ट्ज ही था। बट उसका जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बाय प्रोडक्ट का था। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसके बाय प्रोडक्ट का था, और वो बाय प्रोडक्ट ये था कि अगर कोई मेटल के ऊपर अल्ट्रा वायोलेट रेस को हम इंसिडेंट कराते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, एंड दैट फिनोमेनन वाज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. So this is the history of Hertz experiment, Hertz observation. Is that clear, friends? Yes, sir. उसके बाद हर्ट्ज के दो स्टूडेंट्स थे, एक था हॉलवास एंड दूसरा था लिनार्ड। पहले के जमाने में स्टूडेंट जो थे ना वो बहुत ही अच्छे थे, जो टीचर जो काम बोलते थे उसको बहुत आराम से एंड एक्यूरेटली करते थे। तो हर्ट्ज का तो काम क्या था, हर्ट्ज का तो काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फाइंड करना था, प्रोड्यूस करना था लेबोरेटरी के अंदर। बट उसने वो देख लिया था कि जब कोई लाइट मेटल के ऊपर इंसिडेंट होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन के लाइट्स होती है, मेटल के सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट होते हैं। वो देख लिया था, उसने ऑब्जर्व कर लिया था। तो उसने क्या किया कि उसके पास तो बहुत काम पड़ा था, तो उसने क्या किया कि उसके स्टूडेंट्स थे जो हर्ट्ज के पास पढ़ रहे थे, नाम था हॉलवास एंड लिनार्ड। तो हर्ट्ज ने क्या किया कि भाई वो जो नया कुछ उसने देखा था तो बोले, उसने उसके स्टूडेंट को बोल दिया कि भाई आप एक काम करो, ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है तो उसके बेस पे आप आगे बढ़ो, थोड़े ज्यादा एक्सपेरिमेंट करो। तो हॉलवास एंड लेनार्ड उन लोगों ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया। लिनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। तो लिनार्ड ने क्या किया था कि लिनार्ड ने एक क्वार्ट्ज ट्यूब लिया था और वहां से अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को ये कैथोड के ऊपर इंसिडेंट कराया था, और उसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था, और एनोड के साथ है ना माइक्रो एमीटर कनेक्ट किया था, तो उसके द्वारा पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये लिनार्ड एक्सपेरिमेंट है, उसके बारे में डिटेल में हम अलग से डिस्कस करेंगे। लिनार्ड ने ये किया था, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट अलग से डिस्कस करना है। और हॉलवास ने क्या किया था, तो हॉलवास ने एक है ना जिंक प्लेट लिया था, हॉलवास ने एक जिंक का प्लेट लिया था, और उसको इलेक्ट्रोस्कोप के साथ अटैच किया था। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसके द्वारा
हम चार्ज को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है ना जिंक प्लेट है, ये अभी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड जो जिंक प्लेट है उसके ऊपर होलवास ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट कराया। तो ये पता चला कि उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन दिस जिंक प्लेट, its negative charge reduces. What does it mean? इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन। हाँ, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एमिटेड फ्रॉम दैट जिंक प्लेट। फिर क्या किया कि एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया होलवास ने, और उसमें है ना न्यूट्रल प्लेट रखा और वापस से अल्ट्रावायलेट को इंसिडेंट कराया। तो ऐसा पता चला कि ये जो न्यूट्रल प्लेट था ना वो पॉजिटिव हो गया। न्यूट्रल प्लेट पॉजिटिव हुआ तो मतलब कि क्या हुआ, वापस से क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन एमिशन। उस तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए होगे तो ही ऐसा हो सकता है ना, तो ही न्यूट्रल प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में ऑलवास ने क्या किया कि पॉजिटिव प्लेट ही लिया, जिंक का पॉजिटिव प्लेट ही लिया। तो पता चला कि उसका पॉजिटिव चार्ज ऑन इंसिडेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इट इज फाउंड दैट द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। तो वंस अगेन कंक्लूजन क्या निकला? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन के एमिशन होंगे, मतलब इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस if we incident ultraviolet radiation on the zinc plate, negative charge particle that is electron will be emitted from it. तो ये हॉलवास एक्सपेरिमेंट था। तो लेनार्ड एंड हॉलवास ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में यहाँ पे हिस्ट्री दिया हुआ है। ये पूछने के लिए नहीं होता है, समझने के लिए होता है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। अभी मैं बताऊँ आपको, लर्न बाय हार्ट करने का वैसे एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 भी आपको करना है। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द ओनली 2 क्वेश्चंस यू हैव टू प्रिपेयर एज अ लर्न बाय हार्ट। तो अब एक बार क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है? डिस्क्राइब हॉलवास एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन शॉर्ट। ड्यूरिंग 1886 and 1902 हॉलवास एंड लेनार्ड स्टडीड फिनोमेनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। सबसे पहले लेनार्ड एक्सपेरिमेंट की बात है। As shown in figure, two metal electrodes are kept in the opposite end inside the evacuated vacuum, that is vacuumized tube. On one electrode is called cathode, that is emitter, and the other one is called anode, that is a collector. मतलब कैथोड को एमिट करना है, एनोड को कलेक्ट करना है। तो इसको कैथोड को एमिटर भी बोल सकते हैं, एनोड को कलेक्टर भी बोल सकते हैं। A quartz window is provided in this tube through which ultraviolet rays can incident on the cathode. एक क्वार्ट्ज विंडो है, वहां से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं और बिकॉज ऑफ दैट हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कैथोड में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और वो एनोड को उसको कलेक्ट करना है। तो क्या लिखा है? व्हेन द अल्ट्रावायलेट रेज आर इंसिडेंट ऑन द कैथोड is stopped when the current in the circuit will become zero. Anode A is kept at the positive potential. देखो हमने क्या किया है कि एनोड को है ना पॉजिटिव पे ही रखा हुआ है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए उसको क्या करेगा, वो ये जो एनोड है उसको मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल पे ही रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर ही देगा। और ये इलेक्ट्रॉन के कलेक्ट करेगा तो कलेक्टर के द्वारा कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी हमको पता चल जाएगा। So anode is kept at the positive voltage with respect to cathode and hence it attract the electrons emitted and there is a flow of electron, hence the current is flow. तो ये करंट से द्वारा हमको क्या मिल सकता है? तो ये करंट के द्वारा हमको क्या, सपोज कि यहाँ पे माइक्रो एमीटर लगाया हुआ है, तो अगर करंट मिल जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इज इट इक्वल्स टू एन ई बाई टी। तो अगर
हम यहाँ से इंसिडेंट कराते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, ये पॉजिटिव पे रखा हुआ है, तो ये अगर करंट मिल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम आपको करंट मिलने से मिल जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसके बारे में भी पता चल सकता है ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो पता चल जाएगा। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ना वो डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चंस में। तो ये लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट का एकदम ब्रीफ यहाँ पे दिया हुआ है, हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। When ultraviolet radiation are stopped, the current flowing through the circuit will also be stopped. Linard studied how photocurrent changes with the collector plate potential with the frequency and with the intensity of light. लिनार्ड ने क्या किया था कि अलग अलग इंटेंसिटी वाले लाइट को इंसिडेंट करा था, एनोड एंड कैथोड के बीच के पोटेंशियल भी चेंज किए थे एंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी के भी रेडिएशन इंसिडेंट कराए थे। उसके द्वारा पूरा एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन है। ऑलवाज मैंने आपको बताया कि उसने क्या किया था कि जिंक प्लेट लिया था, उसको इलेक्ट्रोस्कोप से साथ कनेक्ट किया था और जिंक प्लेट के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे जिंक प्लेट है, ये जिंक प्लेट है, उसके साथ इलेक्ट्रोस्कोप है और यहाँ पे इंसिडेंट कराया है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और 3 बार एक्सपेरिमेंट किया था। पहले उसने क्या किया था कि जिंक प्लेट, नेगेटिव जिंक प्लेट लिया था, तो वो नेगेटिव चार्ज उसका डिक्रीज हुआ। फिर चार्ज लेस जिंक प्लेट लिया था, मतलब न्यूट्रल लिया, तो वो पॉजिटिव हो गई। और तीसरी बार उसने क्या किया था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट लिया था, तो उसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ था। सो इन ऑल दिस 3 एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट conclusion is that when the ultraviolet light is incident on the zinc plate, a negatively charged particle are emitted from the zinc plate. That is the conclusion. He also concluded that when the frequency of incident radiation is less than some minimum frequency, the emission does not take place. उसने ये भी देखा था कि अगर फ्रीक्वेंसी कुछ हद से कम है तो भी रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी अगर कुछ हद से कम है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो मतलब ऐसा हुआ कि एमिशन, मेटल में से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको इंसिडेंट कराना पड़ेगा। तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको ही बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वेरी इंपॉर्टेंट एसक्यू, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये 10th क्वेश्चन वही है। बट बिफोर दैट, तनिष यू वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? सर यहाँ पे जो बैटरी दी है फिगर में, उसकी पोलैरिटी अलग नहीं होनी चाहिए, उल्टी? मेरी बात सुनो, हम जब लेनार्ड एक्सपेरिमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव भी करना है, नेगेटिव पॉजिटिव भी करना है, दोनों करना है, दोनों केस है। लिखा ना, क्या लिखा है देखो, इसमें भी लिखा हुआ है दिस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट विद अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या लास्ट में लिखा है, लिनार्ड स्टडीड हाउ द फोटो इलेक्ट्रॉन चेंजेस विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। 3 चीज थी, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के साथ कैसे चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ एंड इंटेंसिटी के साथ। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम पोलैरिटी रिवर्स करके भी देखेंगे और मतलब कलेक्टर को पॉजिटिव भी रख के भी करेंगे, कलेक्टर को नेगेटिव रख के भी करेंगे, दोनों यहाँ पे करने वाले। बट जनरली क्या होता है कि कलेक्टर को पॉजिटिव रखना होता है, मतलब ये यहाँ पे जो पोलैरिटी दिया है उससे उल्टा होना चाहिए। जनरली ये होना चाहिए कि इसको पॉजिटिव रखना होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डेफिनेटली अट्रैक्ट हो सके। ओके, बट दोनों करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सब कुछ करना है। ओके ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया होगा, अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, minimum frequency of the radiation which is incident on the metal plate for which the emission of electron can take place, for which the emission of electron can take place is called the threshold frequency. ऐसी फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जिसके द्वारा एमिशन हो सके। तो अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज योर फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी should either be equals to threshold frequency or should greater than threshold frequency. अगर आपके रेडिएशन का इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा है
तो आपका एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इफ your frequency, incident frequency is less than the threshold frequency, then emission does not take place. तो threshold frequency का definition क्या है भैया? A minimum frequency required to make the emission from the metal is called the threshold frequency. Threshold frequency is depend on the type of material, type of metal. For the manganese, zinc and cadmium, for manganese, zinc and cadmium, threshold frequencies are lies on the ultraviolet section. But for the alkali metal like sodium, potassium, rubidium, cesium, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, for this kind of alkali metal, the threshold frequency lies on the visible region. तो ये threshold frequency क्या है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, और कौन से मेटल में कौन सा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में डिस्कस किया. मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मैं थोड़ा रीड कर रहा हूं, आप देखना. इट इज डिनोटेड बाय, मैं इसको है ना F0 बोलूंगा टू अवॉइड द कंफ्यूजन बिटवीन द वेलोसिटी. तो मैं इसको F0 बोलूंगा. वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेटल. फॉर मोस्ट मेटल लाइक अ जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम, zinc, cadmium and magnesium, threshold frequency lies in the ultraviolet region. And for alkali metals like lithium, sodium, potassium, cesium, rubidium, threshold frequency lies in the visible region. Friends, ये वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन सेम नहीं लग रहा आपको? वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन आपको सेम नहीं फील हो रहा है? तो वर्क फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल. और यहाँ पे क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी. तो दोनों का डेफिनेशन अदरवाइज सेम ही है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए. वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में कुछ तो रिलेशन होना चाहिए. तो है रिलेशन. चलो, अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ना वो F0 है और मुझे एनर्जी तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूं? इस फ्रीक्वेंसी को क्या करूं तो मुझे एनर्जी मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी क्या करे तो एनर्जी मिल जाएगा? सर, जो जूल लाने के लिए जो यूनिट चाहिए, हाँ मतलब क्या आपको पता है HF इज द एनर्जी? हाँ, वो E इक्वल्स टू H म्यू. यू के बदले F को, फ्रीक्वेंसी को मैंने यहाँ पे F बोला हुआ है. इज दैट क्लियर? यस सर. तो if F0 is the minimum frequency, if this is the minimum frequency, right, then HF0 must be the minimum energy, because ये तो एनर्जी की बात है. तो HF0 must be the minimum energy and that minimum energy is known as a work function. क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? So there is a relation the work function and the threshold frequency. That work function is equals to HF0. So this is the relation you need to remember between the threshold frequency and the work function. It is also written as a HC by lambda 0, where lambda 0 is a threshold wavelength. Is that clear? Yes sir. So friends, अब मैं लिनार्ड एक्सपेरिमेंट बहुत ही डिटेल में है. दिस इज अ लिनार्ड एक्सपेरिमेंट. तो ये बहुत ही डिटेल में है, पूरा 1 घंटा लगेगा. और ये जो 1 घंटा है ये चैप्टर का मेन पार्ट है. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिनार्ड एक्सपेरिमेंट इन डिटेल and we derive some conclusions from it, and we will see that conclusions obtained by the Linnard's experiment could not be satisfactorily explained by the wave nature of the radiation. To explain the conclusions obtained by the Linnard's experiment, Einstein had to consider a photon nature of the radiation. तो ये पूरा जो मेन पार्ट है चैप्टर का वो नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं. तो ये चैप्टर वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है.
आज तो हमने जस्ट उसका इंट्रोडक्शन दिया और थोड़ा बहुत आपको समझाया, बट जो नेक्स्ट लेक्चर है, मतलब कल का जो लेक्चर है, वो मेन लेक्चर है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं और उसके कुछ कंक्लूजन डिराइव करेंगे। फिर वेव नेचर के द्वारा वो एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं, पार्टिकल फोटो नेचर के द्वारा वो एक्सप्लेन हो पाते हैं। वो पूरी चीज, पूरी हिस्ट्री जो है वो कल हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना है?